Introduction to e-commerce and VA. Okay, basically after these sessions, you will have an idea about this field and Amazon and will help you to decide whether you want to get further details or quit. Yeah, this is the basic thing. This is Binte Hanif, Amazon Private Label Bootcamp, School of Enablers, Karachi, Amazon Virtual Assistant, School of Enablers, Karachi as well. Okay. So I will share this slides also. आप लोग प्लीज ये फॉलो कर लीजिएगा, खुद भी रीड आउट कर लीजिएगा. हम चलते हैं हमारे बेसिक की तरफ. व्हाट इज ई कॉमर्स? I think you might know what is e-commerce. E-commerce, short for electronic commerce, refers to the buying and selling of goods and services over the internet. आप लोगों को बेसिकली 3 चीजों की जरूरत होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. बेसिक आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट सप्लाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर लैपटॉप. लैपटॉप इज नेसेसरी. इन 3 चीजों के साथ आप अपना ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. Now, moving towards other slides, types of e-commerce: business to consumer, business to business, B2C and B2B. आप लोग सोच रहे होंगे B2C और B2B क्या है. हो सकता है किसी को ना भी पता हो. Let me explain. B2C like Daraz, Amazon, eBay, Shopify, आप लोग कंज्यूमर्स हैं. आप लोगों ने जाके कोई भी चीज बाय की, एड टू कार्ट का बटन क्लिक किया एंड देन वो चीज 2 से 3 दिन में आपके घर पहुंच जाती है. Amazon उसमें B है एंड you are C. This is called B2C. Now what is B2B? B2B is Alibaba, the wholesaler. AliExpress, another wholesaler. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन दे सेल टू द अदर बिजनेस like Amazon, like eBay, like Shopify, or like anyone can buy their products. मैं भी कर सकती हूँ और मैं वहां से buy करके and then मैं Amazon पर list कर सकती हूँ. वो मैंने क्या किया, मैंने B2B किया, business to business. यहाँ पे कोई consumer नहीं है. Okay. Okay. So these are the e-commerce sales platform. You can see Shopify, MyCommerce, Magneto, or Volution, BigCommerce, EasyWid, Amazon, Dcart, everything. What is Amazon now? As I told you before, Amazon is the largest online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. राइट. अब ये करते कैसे हैं, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे. बेसिकली ये आप लोगों के सामने ड्यूरिंग पैंडेमिक एवरीवन इज लाइक हर चीज ऑनलाइन हो रही थी, हर चीज ऑन डिजिटल हो रही थी, और ये ग्रोथ ग्राफ जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये अमेजोन का सेल्स ग्रोथ है जो कि बिलियंस में है. राइट. नाउ द अपॉर्चुनिटीज अभी अगर मैं इस वक्त की बात करूं, जितना यहाँ पे आप लोगों के सामने डिजिट्स दिखा रहे हैं, इससे कई ज्यादा लोग डेली बेसिस पे हर कोई अमेजोन के ऊपर अपनी लिस्टिंग सेल्स कर रहा है. किस तरह से कर रहा है वो ही हम इस कोर्स में सीखेंगे. एक जो वीए की सर्विसेज होती हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए इसी तरह के काम करती है. वो प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के बाद उनको सेल करती है अमेजोन के प्लेटफॉर्म से. अब वो कैसे किया जाता है? See, this is the selling plan, how selling on Amazon works. You send products to Amazon. Amazon stores your product. Customer purchase your products. Amazon picks and packs products. Amazon ships products to the customer. This is the way how selling on Amazon. This is the warehouses. Okay, the marketplaces. United States. कोई भी यहाँ पर जिसको पता हो इस वक्त मुझे बताइएगा, हु इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज गुड्स? डज एनीवन नो अबाउट इट? No one? Students, you can raise your hand if you know about this question. If you don't know, then please do not raise your hand.
Saeem Solatia said USA. Is that correct? Yeah, USA. And who is the biggest exporter in the world? Does anyone know? No one. All right. The China. Why? Let me tell आप you. इसे explain कर सकती हैं एक बार? Sorry. जो अभी आपने एक चीज समझाई ना, ये वाली दोबारा। जी कौन सी चीज आप फिर से बताएंगे मुझे? प्लीज बोलिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। Who is this? Meetup, do you have a question or do you want to say something? Come on, speak up. Meetup Kashif? डरे नहीं, प्लीज बताएं। Okay, shall we continue? I think she was asking about the previous slide. Somebody's wrote on the chat. Or maybe I'll chat, yeah. Previous slide. Okay, previous slide. You can also look at the chat if they have any questions. Also look at the chat Yeah. and you can answer them. मैम टाइप्स Meetup ऑफ ई कॉमर्स अगेन एक्सप्लेन कर देंगे आप? types of e-commerce, right? This one? यस दिस वन ओके। बिजनेस टू कंज्यूमर किस तरह से किया जाता है? आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, राइट? आपने कोई चीज पसंद की, आपको लेट्स से मोबाइल कवर अच्छा लग गया, ईयरबड्स अच्छे लग गए, आपने वो ऑर्डर किया, वो आप तक पहुंच गया। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इवन जब क्लास के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक टास्क अलॉट करूंगी आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स और भी दो हैं जो मैंने यहाँ नहीं पुट किए हैं, जानबूझकर आप लोगों ने मुझे बताने हैं, तो आप लोगों को समझ आएगा कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स होता क्या है। बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस, मैंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, मैंने रिटेलर को दे दी, लेकिन बीच में कोई कंज्यूमर नहीं है, यूज करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने जस्ट उस मोबाइल कवर को मैन्युफैक्चर किया, मेरी फैक्ट्री है, वहां मैंने सारा कुछ मैन्युफैक्चर किया, बट मैंने वो कंज्यूमर को नहीं दिया। मैंने किसको दिया? रिटेलर को दिया, होलसेल रेट पे। उसको क्या कहेंगे? बिजनेस टू बिजनेस। आप लोगों का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बिजनेस टू बिजनेस उसको कहते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट आ रहा होता है कंपनी से और डायरेक्ट होलसेलर को देते हैं, और कंज्यूमर उसको देते हैं जो डायरेक्ट आपके पास कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंच जाए। जी, कस्टमर के पास जब पहुंचता है तो बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। बिजनेस टू बिजनेस में कंज्यूमर इन्वॉल्व बहुत थर्ड नंबर पे होता है, ठीक है? जैसे एक कंपनी ने बनाया, एप्पल ने फोन बनाया, ठीक है? एप्पल कुछ खुद तो बेचने जाएगा नहीं, राइट? वो किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, और जितने भी सप्लायर होंगे उनको देगा, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे सेल करेगा, रिटेलर्स को देगा, वेबसाइट्स पे लगाएगा। वहां से जब चीज जाएगी कस्टमर के पास, तो इस सारे प्रोसेस को B2B एंड देन C होता है। समझ आई? क्लियर? आगे बढ़े। जी Yes, मैम, yes. क्लियर हो गया। गुड गुड गुड। So where were we? Okay, maybe marketplaces. All right. तो मार्केट प्लेसेस का क्या शेयर है? यूनाइटेड स्टेट का 66% शेयर अमेजोन है, ठीक है? जर्मनी है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, और इवन अभी तो बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं, इवन यूरोप भी सेल कर रहा है, ठीक है? और इसके अलावा इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, सारे लोग मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है? मैं खुद इनफैक्ट सेलिंग कर रही हूँ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट USA में, UK में, और सऊदी अरेबिया मार्केट में, एंड देन UAE में, ठीक है? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स। किसी को पता है इस बारे में अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं? नो वन? ओके। प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। अच्छा,
अभी इस वक्त 2023 में और 2024 में भी और आगे भी और सारे मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, बट जो हमारा मेनली फोकस होगा वो प्राइवेट लेबल की तरफ होगा। वाई? ये चीज याद रखिएगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये लिखते जाइएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसी चीजें होती हैं जब ट्रेनर बता रहा होता है तो वो अगर आप लिख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। समटाइम्स आपको कोई बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है। तो यहाँ पर प्राइवेट लेबल क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों फोकस किया जा रहा था, मैंने खुद अपनी जर्नी में प्राइवेट लेबल को ही जो है कंसिडर किया। उसकी वजह ये थी कि जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं किसी के लिए भी, ठीक है, उसमें पूरे प्राइवेट लेबल के बिजनेस में एक बंदे का एसेट बन जाता है प्रॉपर। प्राइवेट लेबल कहते ही इसी को है। मैंने चाइना से एक प्रोडक्ट बनवाई, ठीक है, उस पे अपने नाम का लेबल लगवाया और मैंने उसको अमेजोन पे सेल कर दिया। इतना इजी नहीं है जितना मैं कह रही हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल ये प्राइवेट, हु इज डूइंग दिस, कौन कर रहा है ये, प्लीज ना करें ये। ओके, सो प्राइवेट लेबल के सारे प्रोसेस में आपका मार्जिन, आपके जो सेलर होता है उसका मार्जिन होता है 40 to 50%। समटाइम्स इससे ज्यादा भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ रैंक कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट लेबल कहलाता है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में बहुत स्मूथली चीजें होती हैं। आपके अमेजोन के साथ कुछ टर्म्स, कुछ डील्स हो जाती हैं जिनकी बेसिस पे वो आपको एक अकाउंट एक्सेस करने के लिए देता है, जिसपे आप इजीली अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। होलसेल भी मैंने किया है, बट अभी क्योंकि हम प्राइवेट लेबल पढ़ रहे हैं, अमेजोन FBA पढ़ रहे हैं, तो मैं प्राइवेट लेबल को आगे लेके चलूंगी ताकि आप लोग, और लेट मी टेल यू वन थिंग, जिसको प्राइवेट लेबल आ जाता है, जो प्राइवेट लेबल सीख लेता है, उसके लिए बाकी सारे मॉडल्स भी इजी हो जाते हैं, बी इट होलसेल, बी इट ऑनलाइन आर्बिट्राज, बी इट रिटेल आर्बिट्राज, बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो हम बात कर रहे थे अमेजोन के VA की। VA क्या करता है? एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेस टू रिमोट लोकेशन। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास अच्छा इंटरनेट, आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके पास आपका लैपटॉप है, आप अपने घर बैठकर डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पूरा प्राइवेट लेबल सीख लें, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग सीख भी जाते हैं, कुछ लोग कर भी जाते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर्स भी होते हैं, कुछ लोग फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो इट टेक्स टाइम और चीजें आ जाती हैं स्लोली। अच्छा जी, अब अमेजोन VA की सर्विसेज क्या होती हैं? पहले मुझे ये बताइएगा, सब लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं, माइक बेशक आप अपने ऑन करके बता दें कि सबको क्लियर है। मैं चैट देख नहीं रही, मैं एंड में देखूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड। ओके, अब VA की सर्विसेज क्या होती है, मैं अपनी बात करूंगी आप लोगों से। मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? मैं अमेजोन पे जाके लोगों के अकाउंट सेटअप करती हूँ, जिसको सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए। सऊदी अरब की हेलो ओके, अच्छा, तो हमारे VA क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें वो अकाउंट सेटअप करते हैं, सेलर का अकाउंट मैनेज करते हैं, उनके लिए विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप अमेजोन पे बेचेंगे क्या, आप लिस्ट क्या करेंगे? आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, उसी पे आपका सारा एसेट रिलाई करता है। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग, उसके बाद आप करते हैं लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, यहाँ एक चीज मिसिंग है विच इज सोर्सिंग, क्योंकि हंटिंग के बाद हमारा सोर्सिंग की तरफ कंसिडरेशन होता है, हम करते हैं सोर्सिंग। मैं इसको ऐड कर दूंगी। उसके बाद आप करते हैं कंपैटिटर एनालिसिस, रिव्यूज मैनेजमेंट, PPC which is called pay per click, image designing, coupons and promotions creation, FBM orders management,
प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। बेसिकली FBM ऑर्डर्स मैनेजमेंट ये क्या होता है बेसिकली? अच्छा, ये हमारा नहीं होता, हम ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एक अमेज़न की टर्म है FBA, एक अमेज़न की टर्म है FBM। FBA में होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBM में होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इन दोनों चीजों में फर्क है, वो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। Okay, creating FBA shipments, me too listings, listing error fixing, customer एक्सक्यूज support। मी मैम, जी, आप पहले प्राइवेट टेबल पढ़ाएंगी क्या होलसेल टेबल? मैं प्राइवेट लेवल ही पढ़ाऊंगी। जब आपको प्राइवेट लेवल आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि होलसेल भी कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप प्राइवेट लेवल पढ़ा रही हैं? जी, ओके। ओके। सो क्वालिटीज ऑफ VA, हम क्या, तो आप समझा देती हैं दोबारा से? सॉरी, आपने जो पहले एक्सप्लेन किया था वो वाले दोबारा समझा देती हैं? जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, क्या, कहाँ पर, यहाँ? ये वाला। आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कौन सा वाला। FBM की बात कर रही हैं? जी। जी, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये आप अपने पास लिख लीजिए। नहीं तो मैं आप लोगों के ग्रुप के जो, आई डोंट नो आप लोग किस ग्रुप में ऐड है, जहां पर भी होंगे मैं आप लोगों को वहां पे सारी टर्मिनोलॉजीज जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेन भी करूंगी, एंड देन फिर हम Q&A रखेंगे, उसमें आप लोगों की सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए बता देती हूँ, FBM का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और FBA का FBA का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। Bin Hanif, I'm just gonna request something. I'm gonna interrupt you for 1 minute. Students, if you want to ask questions, please raise your hand. Then we will get to you guys one by one. Okay. Do not interrupt the teacher like that. It's okay for now, but next time, please just make sure raise your hands, and then we will answer your questions. Okay. Thank you. Okay. So here I'm gonna tell you qualities of VA. Must be honest and trustworthy. As everyone know, trust is very rare these days, right? तो trustworthy होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कोई भी आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आपके जितनी भी एक्सपर्टीज हैं, अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, आप ऑनेस्ट नहीं हैं, कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके साथ अपना बिजनेस रन करने के लिए रेडी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और ऐड करूंगी, एक VA की सैलरी क्या होती है वो मैं यहाँ आप लोगों को बताती चलूं। जब एक VA एक्सपर्ट हो जाता है, आफ्टर इंटर्नशिप्स, आफ्टर प्रैक्टिसेस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग, उसकी एक जो नॉर्मल सैलरी होती है USA में काम करने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होती है, USA में काम करने के लिए $400, जो हमारे यहाँ के PKR में 1 लाख से ऊपर है, जिसमें वो सारी चीजें मौजूद होती हैं फ्रॉम स्क्रैच। आपने हर चीज संभालनी होती है, ऐसे ही तो नहीं समझ आती, और ऐसे ही कोई आपको $400 नहीं दे देता, राइट। तो कुछ क्वालिटीज हैं जिनको हमने कंसिडर करना होता है और अपने अंदर चेंज करना पड़ता है। अगर हम ऐसे नहीं है तो हमें ऐसा बनना पड़ता है। मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, गुड बेसिक कमांड ऑन इंग्लिश, कन्वर्सेशनल भी चल जाएगी, ठीक है। ओके, who is doing ये, प्लीज ये कौन कर रहा है, प्लीज? Ayan. Yeah. That was Ayan. Ayan, one second. Let me just see what's going on with this. Sorry, Vintanif. I'm just gonna let me just get this under control. Just give me 2 minutes, okay? Students, Yeah. again, as I told you, I don't like anyone interrupting this class. I'm seeing drawings on here. I would like you to remove them as soon as possible. Please. Whoever's doing this, please remove them as soon as possible. I think it's Yeah. okay, there must be a child. Mhm. Huge. Okay, but then we have a couple of hands raised. Do you want to answer the questions? Yeah, sure, why not? Okay,
So we're gonna go with Mira. Mira Kashif, please unmute and ask a question. Mira, you have your hand raised. Please ask a question. Okay, I think there's something wrong with the mic. M. Zayan Abdul Latif, please unmute and ask a question. मिस वीए की फुल फॉर्म क्या है? Virtual assistant. Okay, thank you. Miss Marfani. मैम जी यस, हम हॉनेस्ट और ट्रस्टवर्दी का टाइटल कैसे हासिल कर सकते हैं? How old are you? 13. Sorry, 13? यस 13. आप तो पहले ही ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी हैं. ठीक है, बाय टाइम आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से ट्रस्टवर्दी बना जाता है. ठीक है, झूठ ओके ना बोल के. ओके, ठीक है. Okay, thank you. We do have another one. Minsa Kashif. मैम आप मुझे एफवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ओके. FBM की फुलफिलमेंट फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट. ओके, और वीए का मतलब क्या है? VA का मतलब है आप और मैं, हम इस वक्त अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो हम वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हम रिमोटली काम कर रहे हैं. आपको कहीं भी जाकर लाइक स्कूल जॉब्स करने की या किसी ट्यूशंस में जाने की, कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास VA की क्वालिटीज हैं, आप एक अच्छे VA बन सकते हैं. तो आपको घर बैठे कमाने की आपको चॉइसेस मिल जाएंगी. ओके, थैंक यू. Thank you. Anyone? Okay, Bintani, you can continue with class. Okay, thank you. Okay, so class, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूंगी मैं ओके. अच्छा, मस्ट बी गुड एट फॉलो अप. फॉलो अप में हम क्या करते हैं? देखें, ये एक वर्चुअल बिजनेस होता है. हम यहाँ पे किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी को क्लेम नहीं कर सकते, किसी किस्म का कोई केस नहीं कर सकते. जैसे कि अभी आप किसी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, आपने उनको इनिशियल स्टेज पे सारी चीजें बता देनी होती है. इवन उनके साथ, सेलर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें हर चीज मेंशन होती है कि आपने क्या क्या अपनी जो है प्रोवाइड करनी है सर्विसेज. ठीक है, उसके अगेंस्ट आप उनसे क्या चार्ज करेंगे. अगर बीच में कोई इस तरह की चीजें आ जाती हैं, आपने उनको जरूर बताना होता है. क्योंकि जो भी आपके पास क्लाइंट आएगा, सेलर आएगा, वो एक हेफ्टी अमाउंट लेकर आएगा, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी उसके पास, और वो आपके बताए हुए फुट स्टेप पे चलेगा. जैसा जैसा आप उसको कहेंगे वो वैसा वैसे करेगा. बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम किसी के पैसों के साथ किसी किस्म का कोई गेम करते हैं. ठीक है, इसलिए ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी होना बहुत जरूरी है. अगले को पता होना चाहिए, जो सेलर है, जो इन्वेस्टर है, उसको पता होना चाहिए कि उसके 10 रुपए, $10, 10 पाउंड कहाँ लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. उसको हर चीज की नो हाउ होनी चाहिए. ऑलराइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं. कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ. सी, यहाँ पे भी आपने यही करना है, उनको बाय टाइम बताते रहना है चीजों में कि इस तरह से हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं. क्योंकि एक आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास एक पेंसिल है, आपने अपने इन्वेस्टर के लिए USA में पेंसिल लॉन्च करने का आइडिया दिया. ठीक है, आपने कहा ये पेंसिल बहुत अच्छी है, एवरग्रीन है, यहाँ पे बहुत बिकती है, आपने इसी को बेचना है. आप उसको बता देते हैं, उसने वहां इन्वेस्टमेंट कर दी, लाखों की इन्वेस्टमेंट करके पेंसिल बॉक्स, ढेर सारे पेंसिल बॉक्स आपको बता दिए कि मैंने बनवा लिए हैं.
और आपने उस पेंसिल को बेचते 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 ऐसे तो नहीं चलेगा, राइट? हमें क्या करना होता है, जो वीए की क्वालिटीज होती है, ये भी एक प्रो टिप है, आप अपने पास रख लें। मोस्टली वीएस नहीं करते, उनको ये होता है कि उनके पास एक पेंसिल के अगेंस्ट एक महीने में $300-400 मिल रहे हैं, उनको अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट मिल जाता है चार्ज, राइट? तो उनको जरूरत नहीं होती है। बट जो अपने इन्वेस्टर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट होगा, वो उनको बताएगा कि आप अपनी पूरा स्टोर रन करने के लिए सिर्फ एक पेंसिल के साथ ना जाएं, आप इसमें पेंसिल बॉक्स ऐड कर दें, शार्पनर्स ऐड कर दें, और बाय टाइम जो टर्नओवर्स, जिसको कहते हैं टर्नओवर्स, आपने जो अर्न किया, आपकी जो रेवेन्यू है, आपने उनके ही साथ अपनी सेकेंड इन्वेंट्री, सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। इसी तरह से स्टोर रन होते हैं, राइट? ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, मे बी अभी थोड़ा सा आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। ओके, सो गुड एट आउटसोर्सिंग फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि ये किस तरह से किया जाता है। इसके बाद must be a helping hand to newcomers, that's what you expected as a newbie, able to adopt multiple ways to improve her skill to stay up to date in the market, must be a practical person with powerful mindset, most important। ओके, आप में से यहाँ पर आई गेस 43 पार्टिसिपेंट्स है, 3 तो हम लोग हैं, मे बी 39 और 40, राइट? तो आप लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का एक माइंडसेट पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर तो आप में से कुछ लोग डर जाते हैं और आगे बढ़ने से कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तो जिनके माइंड में डाउट्स आ जाते हैं, वो बहुत उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको प्रैक्टिकली चीजें लेकर चलना होगा, पावरफुल माइंडसेट के साथ, फिर ही वो एक अच्छे वीए बन पाएंगे, राइट?